Good morning, student. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya, Nasik. As we already know that we are studying the second lesson of our syllabus, an encounter of a special kind. We have already studied the 4 part of the story. Today we are going to understand and enjoy the 5th part of the story. Till this moment we have already studied or understand how the writer saved a baby langur from the attack of male langur, then how he made some effort for the revival of the baby, how he helped the baby to get into life. So all these things were related to the revival of the baby langur. Today we are going to learn and understand what happens next. बच्चों, अभी तक हम लोगों ने देखा कि राइटर ने किस प्रकार से उस बेबी लंगूर को बचाया। सिर्फ बचाया ही नहीं तो उसे मेडिसिन लगाया, उसके वूंड को साफ़ किया, घावों को साफ़ किया, उसे खाने को दिया और उसकी तरफ देखकर राइटर को बहुत खुशी हो रही थी बिकॉज द बेबी कुड ब्रीथ, बेबी ब्रीथ ले रही थी, वो जीवित थी, वो देखकर बहुत खुश हुए। तो आगे क्या होने जा रहा है अगले पैराग्राफ में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस पार्ट में as usually we are going to read the whole passage for the better understanding of the passage. So students, please put your finger on each and every line. Today we are going to read the next passage which is on page number 10. It starts from my attention, so please pay attention. I'm going to read it loudly. Please pay attention. My attention was fixed on the revival of the baby langur. Suddenly, I had an uncanny feeling of being watched. I turned away from the coop and looked up. There sat the mother langur on our kitchen roof, watching every move I made. She simply sat there quietly, as if convinced that no harm was being done to her child. Meanwhile, the baby sensed the presence of his mother and started to sob and cry a little louder. I retreated from the door of the coop to allow the mother access to her baby. Immediately, the mother descended on the floor of the coop and picked up the baby in her arms. She gave the baby a thorough body inspection to check his injuries and then cuddled him tightly in her bosom. The baby found great solace in her caring arm. The mother sat still with the baby in her lap for a few minutes. It was almost as if she was pondering over her options and trying to figure out how she could keep the baby safe from further assault. So, the next activity we are going to do is we have to read the paragraph silently. Underline the difficult words. आप देख रहे हैं आगे. So, you will have to underline the difficult words and then again you will have to read the paragraph. As usually, today also I have find out some difficult words for you. So pay attention to all these difficult words. The first word is revival, that is फिर से जान आना, जिंदगी फिर से चेतना आना. नेक्स्ट वर्ड है अनकैनी. अनकैनी का मतलब क्या है? बहुत ही विचित्र. उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है कन्विंस्ड. कन्विंस्ड होना मतलब किसी चीज़ के बारे में विश्वास होना, उसे क्या कहते हैं? कन्विंस्ड कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड है रिट्रीटेड. रिट्रीटेड मतलब पीछे हटना. नेक्स्ट वर्ड है डिसेंडेड. डिसेंडेड मतलब नीचे उतरना. अगला वर्ड है थरो. थरो मतलब संपूर्णतः. कडल्ड. कडल्ड मतलब अपनी बाहों में लेना. बुझम. बुझम मतलब छाती से लगाना, हृदय के पास लेना. सोलस. सोलस मतलब समाधान. एंड पोंडरिंग. पोंडरिंग मतलब चिंतन करना. तो पैराग्राफ छोटा है तो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी कम हैं. आई होप यू मस्ट हैव अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड यू हैव टेक डाउन ऑल दीज वर्ड्स इन योर नोटबुक. नाउ व्हाट द नेक्स्ट एक्टिविटी यू विल हैव टू डू इज यू हैव टू रीड द पैराग्राफ अगेन फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. फिर से पैराग्राफ को पढ़ना है शांत मन से और इसके बाद एज यूजुअली क्वेश्चंस फॉर सेल्फ असेसमेंट आपको निकालने हैं
सेल्फ असेसमेंट मतलब अपने को कितना समझ में आता है, हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं या नहीं, वो देखने के लिए आपको क्वेश्चंस निकालने हैं। सिंपल क्वेश्चंस है, देखो मैंने आज भी क्वेश्चंस निकाले हैं, तो आपको सिर्फ क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देना है। एज यूजुअली फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि यू हैव to develop your thinking capacity in English, and that's why we are doing this activity again and again. Otherwise translating is the most easy option for understanding the lesson. लेकिन हम लोग क्या करना चाहते हैं कि लेसन सिर्फ पढ़ने के लिए, एंजॉय करने के लिए नहीं पढ़ रहे, हमें इससे हमारा लैंग्वेज कॉम्पिटेंस बढ़ाना है, भाषा का कौशल्य बढ़ाना है, ताकि हम लोग द लैंग्वेज जो है उसे हम लोग सोचना, उस लैंग्वेज में सोचना शुरू कर देते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी मेड फॉर यू। द फर्स्ट क्वेश्चन इन वेयर वॉज द राइटर्स अटेंशन फिक्स। राइटर का अटेंशन जो था वो कहाँ फिक्स हो गया। वेयर मतलब कहाँ, अटेंशन मतलब ध्यान। सो जवाब फर्स्ट लाइन में ही है उस पैराग्राफ की। माई अटेंशन वॉज फिक्स्ड ऑन द रिवाइवल ऑफ द बेबी लंगूर। बेबी लंगूर का रिवाइवल कब होगा, मतलब वो अच्छी तरीके से फिर से चेतना उसमें कब आएगी, वो देखने की तरफ मेरा पूरा ध्यान लगा हुआ था। सडनली, व्हाट हैपेंड सडनली, तभी कुछ हुआ। क्या हुआ, व्हाट मतलब क्या, व्हाट हैपेंड सडनली। सडनली आई हैड एन अनकैनी फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड। तभी मैंने देखा कि सम अनकैनी फीलिंग्स जो थी मेरे अंदर, अनकैनी मतलब एक विचित्र भावना अंदर से आई मेरे, कि समवन इज वॉचिंग मी, कोई ना कोई मुझे क्या कर रहा है, वॉच कर रहा है। वॉच मतलब देख रहा था। व्हाट डिड ही सी, फिर उसने क्या देखा। व्हाट डिड द राइटर सी। आई टर्न अवे फ्रॉम द कूप। राइटर जो था, वो राइटर उस यहाँ से टर्न अवे हुआ, कूप में से टर्न अवे हुआ, जो पोल्ट्री के कूप था उसमें से वो टर्न अवे हुआ। एंड ही लुक्ड अप, उसने देखा दैट देयर सैट द मदर लंगूर ऑन आवर किचन रूफ, कि उसने क्या देखा, वहाँ पे कौन थी, मदर लंगूर वॉज सिटिंग ऑन द किचन रूफ। किचन के रूफ पर, छत पर मदर लंगूर बैठी हुई थी। देयर सैट द मदर लंगूर ऑन आवर किचन रूफ वॉचिंग एवरी मूव आई मेड। मैं जो भी मूव कर रहा था, मैं जो भी क्रिया कर रहा था, मूव मतलब यहाँ पे जो भी हलचल कर रहा था, शी वॉज वॉचिंग इट, वो देख रही थी। शी सिंपली सैट देयर क्वाइटली, वो बहुत शांति से वहाँ पे बैठी थी। क्वाइटली, क्यों शांति से बैठी थी, एज इफ कन्विंस्ड दैट नो हार्म वॉज बीइंग डन टू हर चाइल्ड। क्योंकि वो शांति से क्यों बैठी थी, शी वॉज कन्विंस्ड हो गई थी, मतलब क्या, उसे विश्वास था दैट नो हार्म वॉज बीइंग डन टू हर चाइल्ड, उसके बच्चे को कोई हार्म नहीं हो रहा है, कोई हार्म मतलब कोई तकलीफ नहीं हो रही है। वो देखकर वो क्या हो गई थी, कन्विंस्ड हो गई थी, एंड दैट्स व्हाई शी वॉज सिटिंग क्वाइटली। मीनवाइल, What did the baby sense? Meanwhile मतलब उसी दौरान, उस बीच में। What did the baby sense? बेबी ने कुछ सेंस किया, कुछ महसूस किया। What did the baby sense? The baby sensed the presence of his mother. बेबी ने क्या सेंस कर लिया, उसके माँ का प्रेजेंस। उसे समझ में आया कि वहाँ पे उसकी कौन बैठी हुई है, माँ बैठी हुई है। एंड द बेबी स्टार्टेड टू सॉब एंड क्राई अ लिटिल लाउडर। अब बेबी जो था पहले बहुत धीरे धीरे सॉबिंग कर रहा था, धीरे धीरे रो रहा था। अब बेबी क्या करने लगा, इट स्टार्टेड सॉबिंग एंड क्राइंग लिटिल लाउडर। थोड़ी सी ज़्यादा जान आ गई थी उसके अंदर, और वो थोड़ा सा जोर से बेबी क्या करने लगा, रोने लगा। What did the writer do then? जब बेबी को रोते हुए देखा और मदर को वहाँ पे सिटिंग होते हुए देखा राइटर ने, What did the writer do? राइटर ने क्या किया, देखो नेक्स्ट जवाब वहीं पे है। I retreated from the door of the coop to allow the mother access to her baby. मैं वहाँ से रिट्रीट हो गया। रिट्रीट हो जाना मतलब क्या है, मैंने मतलब पहले ही बताया, रिट्रीट होना मतलब वहाँ से घूम जाना, मुड़ जाना। फ्रॉम द डोर ऑफ द कूप, कूप के डोर से मैं पीछे मुड़ गया। टू अलाउ द मदर टू एक्सेस हर बेबी, ताकि वो मदर जो है वो बेबी को एक्सेस कर सके। एक्सेस मतलब अपने पास ले सके, इसलिए मैंने वहाँ से रिट्रीट हो गया। इमीडिएटली, व्हाट डिड द मदर डू देन? फिर उसके बाद तुरंत मदर ने क्या किया? इमीडिएटली मतलब तुरंत उसके बाद। तो देखो
नेक्स्ट जवाब है द मदर डिसेंडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द कूप। वो जो मदर थी जैसे उसने देखा द राइटर रिट्रीटेड फ्रॉम द प्लेस, राइटर वहाँ से निकल गया है, तो शी डिसेंडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द कूप, कूप के फ्लोर पर वो क्या हो गई, डिसेंड हो गई, मतलब नीचे उतर कर आ गई। एंड पिकअप द बेबी इन हर आर्म्स, और जैसे माँ कोई भी माँ कर सकती ना वैसे उसने शी पिकअप द बेबी इन हर आर्म, उसने अपनी माँ अपनी बच्चे को अपने आर्म में अपनी बाहों में ले लिया। शी गेव द बेबी अ थरो बॉडी इंस्पेक्शन टू चेक हिज इंजुरीज, फिर उसने बेबी को जैसे ही अपनी बाहों में ले लिया, शी गेव अ थरो बॉडी इंस्पेक्शन, थरो मतलब उसने पूरी बॉडी के उसकी बेबी की बॉडी का इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन मतलब अच्छी तरह से देखा कि कहाँ उसको घाव लगे, टू चेक द इंजुरीज, इंजुरी मतलब घाव। एंड देन कडल्ड हिम टाइटली इन हर बुझम, और उसने बहुत कसकर उस बच्चे को अपने बाहों में ले लिया। द बेबी फाउंड ग्रेट सोलस इन हर केयरिंग आर्म्स, बेबी को भी बहुत शांत लगा उस आर्म में, उसके बाहों में सोलस लगा, सोलस मतलब शांति महसूस हुई, आराम महसूस हुआ। द मदर सैट स्टिल विद द बेबी इन हर लैप फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, मदर जो थी वो शी वॉज सिटिंग देयर वेरी साइलेंटली विद द बेबी इन हर लैप फॉर जस्ट अ फ्यू मिनट्स, फ्यू मिनट्स के लिए वो अपनी बेबी को अपने लैप में, लैप मतलब अपनी गोद में लेकर वैसे ही बैठी रही। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ शी वॉज पॉन्डरिंग ओवर हर ऑप्शन, ऐसे लग रहा था एज इफ, ऐसे लग रहा था ऑलमोस्ट दैट शी वॉज पॉन्डरिंग ओवर हर ऑप्शंस, वो पॉन्डरिंग कर रही थी, पॉन्डरिंग करना मतलब क्या, चिंतन कर रही थी अपने ऑप्शंस की तरफ, ऑप्शंस मतलब उसके कौन से विकल्प है उसके पास। Trying to figure out how she could keep the baby safe from further assault. She trying to figure out मतलब प्लानिंग कर रही थी वो अच्छी तरीके से कि how she could keep the baby safe from further assault. further assault मतलब उस बच्चे पर जो आगे आने वाला assault होने वाला हमला होगा, क्योंकि अभी तो उसने छोड़ दिया था वो मेल लंगूर ने, तो आगे वो छोड़ेगा या नहीं पता नहीं, तो ये इस पर चिंतन करने का कार्य कौन कर रही थी, मदर लंगूर कर रही थी कि how she could keep the baby safe in her आर्म, अपने पास वो बेबी को किस प्रकार से सेफ रख सकती है, इसके बारे में उसने सोचना शुरू कर दिया। बहुत ही छोटा पैराग्राफ था। अब इस पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा दैट द राइटर वॉज टोटली थिंकिंग अबाउट द रिवाइवल ऑफ द बेबी, बट द मदर वॉज ट्राइंग टू सी वेदर द बेबी इज getting well or not, and she was quite convinced that there was no harm to her baby because the writer was taking each and every care of the baby. So when the writer just come out of the coop, the baby went inside the coop and she took the baby and take hold of the baby to her bosom. तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से मदर की फीलिंग्स यहाँ पे एक्सप्रेस की है कि हाउ मदर फील्स व्हेन शी सी हर बेबी अलाइव, अपनी बेबी को अलाइव देखकर उसके मन में क्या फीलिंग्स आई है, हाउ शी रिएक्ट टू हर बेबी, उसकी बेबी की तरफ वो किस प्रकार से रिएक्ट हो रही है, सब कुछ इस पैराग्राफ में देने की कोशिश की है। आप शांत मन से इस पैराग्राफ की तैयारी कीजिए, छोटे छोटे सवाल आपको दिखाए बना के आप कंप्लीट द सेंटेंस कर सकते, ट्रू और फॉल्स कर सकते बोर्ड टाइप के इसके लिए। और फिर उसके बाद एक मेन जो कंप्लीट द वेब वाला सवाल है, इसमें आप ये एक सवाल पूछ सकते हैं ना कि व्हाट डिड द मदर डू आफ्टर एक्सेसिंग द बेबी, बेबी को एक्सेस करने के बाद मदर ने क्या क्या किया, तो एक एक एक्शन आप उसमें लिख सकते, तो वो कंप्लीट द वेब में आ सकता है। फ्रेजेस और वर्ड्स कोई भी डाल सकते हैं मीनिंग के लिए, अभी तो बहुत सारे शब्द आए हैं, पॉन्डरिंग करना, थिंकिंग ओवर करना, इस प्रकार से। फिर उसके बाद आपको ग्रामर के कोई सेंटेंसेस निकालो, आप हम लोगों ने अभी तक सीखे उनमें से। और लास्ट सेंटेंस जो है पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस जो है, तो उसमें आप सेम फीलिंग्स मदर के साथ कैसी हो सकती है, हाउ डू योर मदर फील व्हेन यू कम आउट ऑफ एनी इंजुरी, जब कोई इंजुरी से आप बाहर निकलते हो तो हाउ डू योर मदर फील्स, या ये सवाल आप बना सकते हो। तो थैंक यू बच्चों, पैराग्राफ छोटा था इसलिए ये बहुत शॉर्ट में हो गया है। अब ये लास्ट कल का पैराग्राफ जो रहेगा आपका, वो लास्ट पैराग्राफ रहेगा, वो भी बहुत छोटा पैराग्राफ है। आई होप कि पैराग्राफ आपके समझ में आया होगा, और शांतपन से इसकी पढ़ाई कीजिए, क्वेश्चंस लिख लीजिए और उसके जवाब भी आप अपने नोटबुक में लिखिए। थैंक यू। इफ़ एनी डिफ़िकल्टी
you can personally ask me. Thank you.